स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य जय माँ समलेश्वरी। ऑनरेबल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुरेश पुजारी महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रवि नायक महोदय, ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया हिज एक्सीलेंसी मिस्टर ओनो केइची, ऑनरेबल Consul General of Japan, Mr. Ishikawa Yoshihisa, President and CEO, JFE Steel Corporation, Mr. Yoshihisa Kitanu, Chairman JSW Group, Mr. Sajan Jindalji, Honorable MLA Sambalpur, श्री जयनारायण मिश्र महोदय, ऑनरेबल एमएलए झारसुगुड़ा श्री टंकाधर त्रिपाठी महोदय, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती अनु गर्ग, एक्स एमएलए श्री नावरी नायक महोदय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री हेमंत शर्मा, आरडीसी संबलपुर संग्राम केसरी महापात्र, कलेक्टर संबलपुर श्री सिद्धेश्वर बलिराम बंदार, distinguished leadership of JFE Steel Corporation, JSW Steel Limited, distinguished guests, ladies and gentlemen. Oha yu gogaimasu. Good morning. Namaskar. It is a privilege to hear with all of you today at Rengali in Sambalpur for the start of JSW Steel Limited and JFE Steel Corporation project. This project is not only just another project, it is a vote of confidence on the state government's industrial policy and the path we have taken for making Odisha to gateway of Eastern India, और आज द ऑनरेबल यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से पूर्वोदय। I warmly welcome the leadership of JFE Steel Corporation to Odisha. I congratulate JFE and JSW on the start of JSW JFE electrical steel facility in our state. This partnership between JSW and JFE is truly a partnership between India and Japan. This partnership represents India's industrial scale with Japan's excellence in technology, which together can rewrite the growth story of Odisha. बंधुगण, आज केवल संबलपुर नुहे सारा ओडिशा पाई आम समस्तंकर पाई एक ऐतिहासिक दिन, कारण दुई देश जता भारत और जापान इस्पात उत्पादन रे निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करितबा दुईटी आगधाड़ी ये प्रतिष्ठान संस्था एकत्र आसी रेंगाली रे एक बृहत इस्पात कारखाना आज प्रतिष्ठा करुछंती। एही जॉइंट वेंचर राज्यर इलेक्ट्रिकल स्टील उत्पादन करिवो। एथिरो इलेक्ट्रिकल मोटर और ट्रांसफॉर्मर परी अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो प्रस्तुत हुए ताको एइटी सामान्य प्रस्तुत करिवे सारा भारत वर्ष पाई सारा विश्व पाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये डबल इंजिन सरकार तांकर दिल्ली रे मेघ उठेले इठी वर्षा हबो, तेणुकरी ये गोटे भल सरकार
ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता କଥା କହୁଥିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତୁଙ୍ଗ ନେତା, ବହୁତୁଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କହିଲେ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 24 କୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମନା କରିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 26 ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 1 କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 24 କୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଇଏ ତ ଅବୁଝାମଣା ସରକାର। ଇଏ ବୁଝନ୍ତି ଗୋଟେ, କହନ୍ତି ଗୋଟେ, କରନ୍ତି ଗୋଟେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନନୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କର ସଭାରେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଚେୟାରକୁ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖିପାରୁନି। କିଛି ଲୋକ ସେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆଗରେ ବସେଇଦେବେ। ସେ ବିଚରା କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ବସିବେ, ଆଗରେ ବସେଇଦେବେ। ପଛ ଚେୟାର ସବୁ ଖାଲି ଥିବ। ଯଦି ବା କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିବେ ସଭା ଆରମ୍ଭର, ଇଏ ତ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କିଛି ପଇସା ପାଉଥିବେ। ମୁଁ ତା ବି ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ଖାଲି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କରାଯାଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ତାହାର 1/10 ମାନେ 1/10 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ସରକାର ଧନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। टाइम पास करने बिजुली गासी ना गोटे टाइम पास करने बसिक आलोचना करुँ। जो मैंने जीवन सारा विजुआ को गाड़ी देते, जीवन सारा विजुआ को हैरान कर विजुआ को जातीय स्तर में अपमानित अपदस्थ करने देखुली से मैंने बसिक कहते आम विजुआ आदर्श अनुप्राणित, आम विजुआ जो कौन कहते से बिजुली गासी, आम सब बिजुली गासी। बहुत भल कथा, जहा हो विजुआ को जहाँ करते ओडिशा पाई, विजुआ को जहाँ करते आंतरिकतार सहित ओडिशा युवक मान ओडिशा माटी ओडिशार उन्नति करुले। से सत कथा बहुत दिन पर मानिले, हाँ विजुआ ठीक कथा करते बोली। जो मैंने जीवन सारा विजुआ को गाड़ी देते से एकाठी होती भल कथा आलोचना कर जो आज्ञा आलोचना हुए तार तो किसी गोटे निर्यास बाहर जो मैंने बसिक आलोचना करते कौन सरकार पाखे प्रस्ताव थोइले विजुआ विषय कौन सरकार पाखे तो राज्य सरकार पाखे किसी गोटे प्रस्ताव थोइथिबे जे विजुआ करा जाओ। विजुआ जन्मदिन को आम मार्च 5 को पंचायत राज दिवस भाव पालन करूँ। से कथा को बर्तमान सरकार बंद कले, कहीं बिजुली गासी से कथा उठाऊना लेखिक दौना सरकार को जे विजुआ जन्मदिन को पंचायत राज दिवस करा जाऊनी, कहीं विजुआ अपदस्थ करागला, कहीं अपमानित करागला, कहीं एक कहीं बिजुली गासी तो करूना। बिजुली गासी कौन कौन प्रस्ताव सरकार को दे टाइम पास करने बिजुली गासी ना गोटे टाइम पास करने बसिक बीजेडी सारा ओडिशा रे जनसाधारण को हृदय अच्छी। सरकारी दल आम 37,798 भोट अधिका पाइछु। तेणु बीजेडी भांग कौटा
आमे पूरा जनमतरे जनता हृदय अच्छु तेणु विजेडी भांग कौन से निजे भांगी बोली कहीं कहूना तो तेणु निजे भांगी बोली विजेडी नाटा को धरु जेते नुआ फ्रंट हम भल गणतांत्रिक पद्धति जेते लड़ाई कले गणतंत्र प्रतिष्ठा हम गणतंत्र सुदृढ़ हम तेणु से व्यस्त हर कौन अच्छी कि असुविधा जनमत तो जुआड़े गला सीआड़े चलो तेणु मैंने बाड़े पिटी हो निर्वाचन नियम उल्लंघन कर नरेंद्र मोदी वेस्ट बेंगल प्रचार कर गोटे स्टेट रे इलेक्शन चली गला काली गोटे इलेक्शन सरी पुणी से स्टेट रे जाकर प्रधानमंत्री अमित शाह प्रचार करवा एटा कोड ऑफ कंडक्ट विरोधी नुहे तेणु से नियम पानी मानुना ताहा सत्वे मैंने बाड़े पिटी हो सीना वेस्ट बेंगल रे पुणी पुणी परीक्षा ताले जो माने बिजुली गासी करी बिजु हमको मन पकाउथिले या पूर्व को फेरी जाओ केते वर्ष जागिरी फूलमाला देइथिले बिजु पटनायक पाखरे नै मु पचारुची बिजु पटनायक एटा तांकर मार्च 5 गला पंचायत राज दिवस गला 5 ए जस्ट निकट रे को जगह देछनी जो माने बिजुली गासी करछन केते फूलमाला गळैछन तांको बिजु पटनायक पाखरे केते थर बळैछन जो मैंने विजु बाबू को कथा मन पकाउछन आज दीर्घ वर्ष होलानी केते थर विजु बाबू को मन पकईछन जेतेबेले सरकार पंचायत राज सिस्टम मार्च 5 टा करिक आज एप्रिल 24 जातीय पंचायत राज दिवस पालन कला सेतेबेले केते थर प्रतिवाद करछन कोन जवाहरलाल नेहरू को नवेम्बर 14 चिल्ड्रेन्स डे टाकू परिवर्तन करदेबे तांको ना आसीबो कांग्रेस बोली नवीन निवास को बिकी देवा पई नवीन निवास तो मुझे काली जाइए तो कहीं बिका बिकी अन्य लोक कहीं ना नवीन पंडा अच्छा बिकला के जे आम ट्रस्ट करूँ व्यक्तिगत भाव नवीन बाबू कौन ट्रस्ट करेंगे मुंड के मत होची कौन मत होची मु ट्रस्ट करी मु लक्ष टंका श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार पाई मु लक्ष टंका ट्रस्ट करी मु मोर कर सुधरे मु गरीब लोक दौजी केतले कार 5 टंका औषध दरकार 10 टंका औषध दौची तो से कौन मत कौन कर ट्रस्ट दैट इज पर्सनल प्रॉपर्टी विजेडी चलती बोली तो अच्छु आम ना साहस में कथबार्ता करते विजु न विजेडी न तुम घर शुता हम चलो प्रत्येक दल में अनुशासन हूँ इम्पोर्टाट अनुशासन अनुसार काम न कले विपद सृष्टि हुए समाज में विजेडी भविष्य उज्जवलमय समय कह पंचायत निर्वाचन 2029 पुणी समय कह केदिन आम किए विजेडी सारा ओडिशा रे जनसाधारण को हृदय अच्छी सरकारी दल आम 37,798 भोट अधिका पाइछु तेणु विजेडी भांग कौटे आम पूरा जनमतरे जनता हृदय अच्छु तेणु विजेडी भांग कौन से निजे भांगी बोली कहीं कहूना तो तेणु निजे भांगी बोली विजेडी नाटा को धरु जेते नुआ फ्रंट हम भल I think India, as the largest democracy and rapidly rising economic power globally, is well positioned to actually exercise its own foreign policy for its own national interests. Over the past years, if you see, whether it was the soft diplomacy post Operation Sindoor, whether it has been our engagement at the global diaspora level, or whether it is in terms of international diplomacy, India has been trying to make those rapid strides to keep itself relevant and be sought after at the international diplomatic high table. The jury can be out in terms of there are people who say, yes, it's a good thing. Some people say, no, it's not a good thing. But the fact is that Indian diplomacy, and for that matter, the geopolitics relating to Indian foreign policy has dramatically changed. So what the former US ambassador is saying, I agree with him. And I believe that India needs to keep exercising its soft power through its global diaspora to further accentuate its global position at the high table of diplomacy. I think India, as the largest democracy and rapidly rising economic power globally, is well positioned to actually exercise its own foreign policy for its own national interests. Over the past years, if you see, whether it was the soft diplomacy post Operation Sindoor,
whether it's been our engagement at the global diaspora level, or whether it is in terms of international diplomacy. India has been trying to make those rapid strides to keep itself relevant and be sought after at the international diplomatic high table. The jury can be out in terms of there are people who say, yes, it's a good thing. Some people say, no, it's not a good thing. But the fact is that Indian diplomacy, and for that matter, the geopolitics relating to Indian foreign policy has dramatically changed. So what the former US ambassador is saying, I agree with him. And I believe that India needs to keep exercising its soft power through its global diaspora to further accentuate its global position at the high table of diplomacy. उससे भटक चुकी है और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज उससे कई गुरुकुल में किस तरीके से बच्चे की हत्या हुई, न जाने कितनी राजधानी में हत्याएं हो चुकी हैं। और राजधानी का तो केवल हत्याएं नहीं, भू माफिया बनकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां भी किसी भी योजना के लिए कोई योजना आती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के जमीनें पहले ले लेते हैं। जितनी भी योजनाएं आई हैं लखनऊ के आसपास, मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप तो खोजबीन कर लेते हो, आपके कान भी तेज हैं, आंख भी तेज है। हमें उम्मीद है कि उन भू माफियाओं के खिलाफ भी आप कुछ न कुछ जानकारी हासिल करोगे और अपने किसी न किसी माध्यम से आप उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाओगे। सब तालाब कब्जा हो गए लखनऊ में, सब तालाब। और ग्रीन फील्ड या ग्रीन कॉरिडोर 7,000 करोड़ का है। बताओ, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि कहीं भी ट्रैफिक का रुकावट ना हो, स्मूथ फ्ले करे। और अगर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराना हो या पहुंचाना हो तो उसके लिए कोई भी ट्रैफिक रुके नहीं किसी भी चौराहे पर। आप दिखाइए डिजाइन क्या की है उन्होंने।
लगता तो यह है कि अगर इंजीनियर डिजाइन करके लाए होंगे तो उस डिजाइन को मुख्यमंत्री जी ने फेंक दिया होगा, उसी डिजाइन को खुद किया होगा, उन्होंने खुद बैठ गए होंगे डिजाइन करने के लिए। जब मुख्यमंत्री खुद डिजाइन करेंगे तो हर चौराहे पे तो आपको टक्कर मारनी ही पड़ेगी, रुकना ही पड़ेगा। केवल यही नहीं, सोचिए कैसे शेर तो हमारा क्या है, शेर बब्बर शेर, वो तो सबसे सुंदर है, जंगल का शेर है। आप तस्वीर देखो उस बब्बर शेर की, कैसी बनाई उन्होंने। इतनी खराब बब्बर शेर की स्टैच्यू कोई नहीं बना सकता था जो इस सरकार ने बनाया। लगता है उसके भी इंजीनियर और गाइड मुख्यमंत्री जी रहे होंगे। Not want to comment anything because model code of conduct is in force. Whatever the outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. It's clearly indicate that people are voting against Mamata Banerjee. People are voting with anger. People are voting for change. So the TMC has claimed that yesterday the first phase they will get the. Because everybody will claim, but you should speak to the people. 110 আসন পাবে বিজেপি। 29 তারিখ আমি তো চাই 200 সিট, আবার 90টা সিট হবে কি না হবে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে কি এবার বাংলায় বিজেপি 200 সিট পাওয়ার পরে সরকার করবে। গুন্ডাকে বাংলাদেশ ভেজিয়ে দিবেন, পাঠিয়ে দিবেন বাংলাদেশ। বাংলাদেশি মুসলমান गोला सिटीजनशिप प्रूफ करते होंगे। अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे उनको बांग्लादेश में पुशबैक किया जाएगा। सर जिस तरह से यहाँ पर एसआईआर का हुआ था, असम में भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, असम में भी होना चाहिए। नहीं, बल्कि जो हमें खबर है, जो अखबारों की हेडलाइन है कि बंगाल में 92.6 या 59 और तमिलनाडु में क्लोज टू 86%। अच्छा है संकेत, और मैं समझता हूं कि वोटर पार्टिसिपेशन ये अपने आप में बेहतर संकेत देता है। दोनों पार्टियों के जो मुख्य मुकाबला पश्चिम बंगाल में है, टीएमसी और बीजेपी, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। और टीएमसी कह रही है कि हम 152 में से 125 सीट जीत रहे हैं, ये पक्ष में, हमारे पक्ष में मतदान है। बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में है। आज कितनी तारीख को हम ये बात कर रहे हैं? 24 तारीख, 10 दिन बचे, सब साफ हो जाएगा। कष्ट इस बात का है कि जिस तरह की जुबान बोली जा रही है, खास करके बंगाल चुनाव में ओहदेदार लोगों द्वारा, वो आपको महफूज नहीं महसूस कराता। डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हर व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए, उनको भी जिनके ओहदेदार ये बोल रहे हैं। सर से ज्यादा वोटिंग, सारे रिकॉर्ड टूट गए क्या? नहीं, रिकॉर्ड है भाई। महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की है, उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा? तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते, उसमें क्या है? हमारे स्टेट में, इस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं ऑटो टैक्सी वाले, कह रहे हैं कि उसका मतलब है आप यहाँ ठीक से और प्यार से और कानून से जो हम आपको रोजगार ये राज्य दे रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं ना। आप इस राज्य का सम्मान करना चाहिए। आपको रोजगार दे रहे हैं, आपको घर दे रहे हैं, आपको यहाँ रहने के लिए सब कुछ मिल रहा है, और आप मराठी भाषा के बारे में इस प्रकार की अगर
भूमिका लेंगे वो गलत है। आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में आपके साथ व्यवहार करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी हैं। है भाई, महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की है, उसमें गलत क्या है? हमने गलती कौन सी की कि माफी मांगने और ना मांगने? हम किससे माफी मांगेंगे? हम यदि पॉलिटिक्स में कोई भी मेरी मां बहन आ रही है, उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और यदि हमारी बहन राजनीति में आने वाले बहन को कहीं ठेस पहुंची होगी, हम तो कहेंगे कि सभी बेटी हमारी सुरक्षा साफ सुथरी है। यदि उसके बावजूद भी किसी को जो ज्यादा हायतोबा मचा रहे हैं ठेस पहुंचा होगा, तो जब मैं बेटी की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसी को मेरे आचरण से ठेस पहुंचेगा तो उनसे क्षमा मांगने में कौन सा हर्ज है मुझे? लेकिन जो हमाम में नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो। दुनिया को पता है कि एप्स्टीन फाइल के बाद अब कुछ नहीं बचा है। सारे नेता और पदाधिकारी पूंजीपति 6 साल से 12 साल बच्चियों के साथ बलात्कार करके भूज के खा रहे हैं। तब भी माफी मांगो, बॉबी खान के बाद भी माफी मांगो, और स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी पॉलिटिशियन से अपनी बच्ची और बहनों को रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और उनको ठेस ना पहुंचे 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार क्षमा मांगना पड़ेगा तो मैं मांग लूंगा, मैंने कोई भूल की हो तो। Cabinet went to discuss on the internal reservation issue, because there are multiple cases that have been put on the ceiling limit, and they've also questioned on the format of the internal reservation. So there are also about the recruitment. So we'll see how it goes. Sir, regards the Kargil, Modi BJP demanding the Kargil apology to the people of the country. See, the BJP people's patriotism is limited only to RSS and Mr. Modi. The President of United States, that is Mr. Modi's friend, Mr. Donald Trump, calls India hellhole. And still these people don't say anything. Their Desh Bhakti is limited only to RSS and Modi. If anything said against Mr. Modi, these people come onto the streets. Anything said against RSS, these people come onto the streets. They have these endless press conferences criticizing the opposition. दूसरी बात जो डिमांड मैनेजमेंट है, जैसा आप जानते हैं कि कई स्तर पर प्रयास हुए हैं, इसमें बुकिंग को भी थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। इन्हीं सभी प्रयासों से के फलस्वरूप जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से हो रही है, कहीं पर कोई कटौती नहीं है। डोमेस्टिक अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वहां पर भी सारी की सप्लाईज सुचारू रूप से चल रही हैं। कमर्शियल में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने कैलिब्रेशन करते हुए धीरे धीरे कमर्शियल को भी 70% तक इंक्रीज किया है। सो दीज आर द स्टेप्स। इसके अलावा एडिशनल फ्यूल्स जो कोल है या फिर कैरोसिन है, उसके लिए उसकी सप्लाई को बढ़ाने। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य